Hello my dear students, this is Swati Chawla. Again, I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss some previous year questions from the chapter Computer Networking. Again, this is the most requested video from my students. I got many requests for this video, so here it is. Before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video, do press the like button and share it with your friends. So let's start our today's video. Now, before discussing the previous year questions from the chapter Computer Networking, let me show you the analysis of this. This is being done according to the sample paper which has been issued by the CBSE. In that sample paper, these are the question numbers, topics from which the questions asked, and these are the marks. So, total 5 questions were there of 1 marks. That means total 5. And then 2 questions of 2 marks each, that means 4, and plus 1 building based question जो आपका आता ही आता है, most important है, of 5 marks. Fine. So total is, if I am not wrong, it's 14. और अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो उसमें जो आपकी मार्किंग दे रखी है बेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. फाइन. सो इसमें आपका जो सैंपल पेपर है उसमें ये 14 मार्क्स का दिया हुआ है और इसमें आपका सैंपल पेपर सिलेबस में बेटा ये 10 मार्क्स का गिवन है. फाइन. अब इसमें से देखो बेटा, जो आपका क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन बिल्डिंग अ काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. अगेन काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है. आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन दैट हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. In this video, I am going to cover some previous year questions of 1 mark or 2 mark. अब आपको मार्किंग पता है बेटा कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे either from 1 mark or 2 marks. So you have to prepare your answers accordingly. Fine. Now before starting this, let me show you now see this, the syllabus. इसमें आपको given है बेटा नेटवर्किंग 10 marks. और अगर हम सैंपल पेपर की बात करें, यू कैन एनालाइज दिस. अगर क्वेश्चन नंबर्स लिखोगे तो वो आपको 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठ रहा है. सो देयर इज अ लाइक दिस मैच बिटवीन दिस, बट नो वरीज अबाउट दिस. हमने तो सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. फाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Amit used a pen drive to copy files from his friend's laptop to his office computer. Now this person's name Amit is given. उसने क्या किया, अपने पेन ड्राइव से कुछ फाइल्स कॉपी करी फ्रॉम फ्रेंड्स लैपटॉप टू हिज ओन कंप्यूटर. Now soon his office computer started abnormal functioning. Now suppose this is, ये अमित है. फाइन. ये है जो है फ्रेंड का कंप्यूटर है बेटा, फ्रेंड्स कंप्यूटर. ये उसकी ऑफिस का कंप्यूटर है. अब इस अमित ने क्या किया बेटा, अपनी पेन ड्राइव लगाई फ्रेंड के लैपटॉप में, डेटा कॉपी पेस्ट किया. अब वही सेम पेन ड्राइव उसने कहां पर इंसर्ट कर दी, अपने ऑफिस के कंप्यूटर में. अब जो ऑफिस का कंप्यूटर है, इट वाज स्टार्टेड एबनॉर्मल फंक्शनिंग. समटाइम्स इट वुड रीस्टार्ट बाय इटसेल्फ एंड समटाइम्स इट वुड स्टॉप फंक्शनिंग टोटली. Which of the following options out of 1 to 4 would have caused the malfunctioning of the computer? अब इसमें आपको options given है. Justify the reason for your chosen option. अब options क्या given है बेटा, computer worm, virus, bacteria and then Trojan horse. अब देखो जो computer worm है, ये आपका होता है self replicating. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स जो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है. अगर ये टर्म मेंशन होती है हमारे क्वेश्चन में कि इट इज क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तो हम डेफिनेटली आंसर क्या लिखते हैं, कंप्यूटर वर्म. बट अब ये टर्म गिवन नहीं है, सो वी विल नॉट गो विद कंप्यूटर वर्म. नेक्स्ट आते हैं बेटा कंप्यूटर बैक्टीरिया. ये कोई टर्म नहीं है, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब नेक्स्ट आता है बेटा कंप्यूटर वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स.
Trojan horse is also a type of computer virus. So for this question, both options are correct. Computer virus as well as the Trojan horse. Now see the reason. Pen drive containing computer virus or Trojan horse is also a type of virus, was used before the abnormal functioning started. जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑफिस का कंप्यूटर सिस्टम है वो करप्ट हो गया, उसने प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, उसने मेरी फाइल्स को, सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर दिया, उसको सिस्टम को इफेक्ट करा. फाइन. नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. Jay is an IT expert and a freelancer. He recently used his skills to access the admin password for the network server of Megatech Corporation Limited and provided confidential data of the organization to its director, informing him about the vulnerability of their network security. Out of the following options 1 to 4, which one most appropriately defines Jay? अब आपको बताना है who is Jay. ठीक है, IT expert है. What he has done, उसने जो आपका पासवर्ड था, एडमिन पासवर्ड, अपने स्किल्स को यूज करके उसने क्या करा, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो उसी कंपनी के डायरेक्टर को प्रोवाइड की और उसको बताया कि आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में ये वल्नरेबिलिटी है, ये थ्रेट्स है. वल्नरेबिलिटी मींस वीक पॉइंट्स. अब आपको बताना है जय कौन है बेटा. हैकर, ट्रैकर, ऑपरेटर, नेटवर्क एडमिन. सी नेटवर्क एडमिन जो होगा वो नेटवर्क रिलेटेड सारे काम करेगा. ऑपरेटर वो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर लाइक इट कैन. अब मेरे पास टर्म आती है बेटा हैकर और क्रैकर. काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैकर एंड द क्रैकर. नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली. हैकर इज अ पर्सन जो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस कर रहा है उसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं होगा. if I am doing something with good intention or for good purpose, that means I am hacking this. और cracking means अगर हम उसको illegal कुछ कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं with malicious intent, तो वो आपका क्या होगा बेटा, क्रैकर. अब इवन जो आपके कोर्सेज भी होता है दैट इज एथिकल हैकिंग. क्रैकिंग का कोई कोर्स नहीं होता है. रीजन बीइंग दैट बेटा हैकिंग इज लीगल प्लस दिस इज एथिकल. फाइन. इसमें हमारे को ये होता है कि हम गुड पर्पस के लिए अपने स्किल्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब अगर आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनके क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल होते हैं, लाइक उनकी सीरियल कीज अवेलेबल होती है, दैट आर ऑल इलीगल. मीन्स जो आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको फ्री में कैसे क्रैक करना है, उनकी क्रैक की होती है, तो वहां पर हमारी टर्म क्या यूज होती है बेटा, क्रैक सॉफ्टवेयर. वहां पर हमने लिखते हैं हाउ टू हैक द सॉफ्टवेयर. देयर वी यूज टू एंटर हाउ टू क्रैक द सॉफ्टवेयर और द क्रैक्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स दिस इज टोटली इलीगल. सो हमारा आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर, ऑब्वियसली हैकर. व्हाई? बिकॉज उसने जो भी काम किया उसने कंपनी के डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन दे दी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी. So Jay is a hacker. Now next question. Write 2 advantages of using an optical fiber cable over an Ethernet cable to connect 2 service stations which are 190 meter away from each other. That means you have to write the advantage of optical fiber over an Ethernet cable. Now see this first one is low power, high data rate, and the third one is digital signals. Because signals in optical fibers degrade less, so lower power transmitters can be used. जो हमारी optical fiber cables होती हैं उसमें हमारी power less use होती है, उसमें हमारे signals भी जब वो degrade नहीं होते हैं. Higher data rate, obviously इसकी जो speed होती है वो fast होती है, bandwidth fast होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो data transfer rate भी क्या होगा बेटा, high होगा. And optical fibers are ideally suited for carrying digital information which is specially useful in कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं इसमें हमारे डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं. फाइन. सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज कंपेयर टू द ईथरनेट केबल. नाउ सी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और कंफ्यूजन इन एनी टॉपिक लाइक ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, व्हाट इज ईथरनेट केबल, व्हाट इज कोएक्सियल केबल. So for that you can watch the detailed videos of this playlist of computer networking. I will provide you the link of the playlist in the description also. Because in this video we are going to discuss the question answers only. अगर आपके concepts clear नहीं है, आपको meaning नहीं पता, तो I suggest you to watch those videos also.
just to make your concepts more clear. Now next question, identify the type of topology. Topology का question भी important है. On the basis of the following. अब आपको बताना बेटा, since every node is directly connected to the server. Suppose this is my server और ये सारी की सारी nodes directly connect हैं बेटा server से. तो which type of topology is this? Star topology. And which increases the installation cost of network. सिर्फ इतने से मुझे आंसर पता लग गया बेटा. Every node is directly connected to the server. Next है बेटा, it has a single common data path connecting to all the nodes. Single common data path हो गया and connecting to all the nodes. So that means this is my bus topology. So answer of first is star topology and for second it's bus topology. Now next sixth question, expand the following full forms. इसकी separate video I have already uploaded for the abbreviations only. VoIP stands for Voice over Internet Protocol and this is generally used अगर हम video conferencing कर रहे हैं. ये question आ जाता है which protocol is used for video conferencing. So there also you can write VoIP protocol. Next is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, generally used to send the mails. Now next is beta who is a hacker. ये अभी हमने डिस्कस किया hacker. This is a hacker is a person who breaks into the network of an organization without any malicious intent. Fine, this is the main point. A hacker accesses the computer without the intention of destroying data or maliciously harming the computer system. Means मेरा intention उस टाइम पर गलत नहीं होता है. I am doing the hacking for the good purpose. And hacking is a process that is being done and hacker is a programmer or you can say the person who is hacking the computer system. Fine. Now next eighth question. The following is a 32-bit binary number. अब इसमें से क्वेश्चन आ जाता है जो हमारा IP एड्रेस होता है कितने बिट्स का होता है बेटा? 32 bits. Usually represented as 4 decimal values, each representing 8 bits in the range 0 to 255, known as the octet, separated by decimal points. ये हमारे को एक दे रखा है बेटा. This one. What is it? देख के पता लग रहा है this is my IP address. And what is its importance? IP address की main importance क्या है बेटा? It is used to identify the computers on a network. IP address हर एक computer system का unique होगा. With the help of IP address, we can identify any computer system in the network. Now next question. Daniel has to share the data among various computers of his 2 offices within the same city. Fine. Name the network. अब within the city कौन सा network होगा बेटा? MAN. Within the campus or building it's local area network. Within the room आप कह सकते हो personal area network. इसकी range होगी within meters. All over the world it's WAN, wide area network. And within the city कौन सा होगा आपका बेटा? MAN, that is metropolitan area network. Now next question. Give 2 examples of PAN and LAN type of network. Now you have to give examples. LAN का example बेटा, small office और internet cafes में आपका LAN network use होता है. Within the school building, within the office, 2 or more computers connected in few distance, वहां पर भी आपका कौन सा use होता है बेटा? LAN. और PAN के examples बेटा, generally when we used to transfer the data from our cell phone, mobile phone to laptop, data transfer between 2 mobile phones to laptops, hotspot के थ्रू हम data transfer करते हैं, Bluetooth के थ्रू data transfer होता है, hotspot create करते हैं. So ये सारे हमारे किस टाइप के नेटवर्क हैं बेटा? PAN network. And the full form of PAN is Personal Area Network. Now next question, what is protocol? Which protocol helps to browse through web pages using internet browser? Name any one internet browser. Protocol क्या होता है बेटा? Set of rules. Means like suppose we are having one network. अब उस नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क्स हैं लाइक नोड्स हैं, वर्कस्टेशंस हैं, वो क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं व्हाइल कम्युनिकेटिंग व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा. दीज आर ऑल नोन एज प्रोटोकॉल्स. और विच प्रोटोकॉल हेल्प्स अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेजेस? www और http. बोथ प्रोटोकॉल्स आर करेक्ट टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. अब नेक्स्ट इसी में पूछा है बेटा नेम एनी वन इंटरनेट ब्राउजर. अब इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं?
गूगल का एग्जांपल लिख देते हैं, इंटरनेट ब्राउजर. सी गूगल इज माय सर्च इंजन, याहू इज माय सर्च इंजन, दीज आर नॉट माय वेब ब्राउजर्स. वेब ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर्स through which we can search any topic or open any website. So example of internet browsers are Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome and Opera Mini. These are the examples of my web browsers. Now next question is, write two advantages of 4G over 3G mobile communication technologies in terms of speed and services. Now see beta, you all are using even your mobile phones, उसमें 3G 4G मोबाइल कनेक्शंस हैं. अब आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड और सर्विसेज ऑब्वियसली 4G इज बेटर देन 3G, 3G इज बेटर देन 2G. सो उसी चीज को माइंड में रखते हुए यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस. सो टू एडवांटेजेस ऑफ 4G ओवर 3G टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ स्पीड की बेटा अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 4G विल प्रोवाइड अस द फास्टर वेब ब्राउजिंग एंड फास्टर फाइल ट्रांसफर. और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो बेटर वीडियो क्वालिटी प्लस बेटर सिक्योरिटी वी विल गेट इन द 4G टेक्नोलॉजीज एज कंपेयर टू 3G. नेक्स्ट आता है बेटा, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ 3G ओवर 2G टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड सर्विसेज. नाउ सी बेटा, ऑब्वियसली जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है वो 3G की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2G. और इन 3G इट्स अप टू 21 Mbps and in 2G it's 5.7, sorry, the downloading speed जो है 3G में 21 Mbps and uploading speed is 5.7, whereas जो 2G टेक्नोलॉजीज है, जो हमारे पास 2G फोन्स हुआ करते थे तो वहां पर स्पीड जो है kbps में होती थी. और सर्विसेज लाइक मोबाइल टीवी, वीडियो ट्रांसफर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं 3G में which were not there in the 2G technologies. Now next question, write one characteristic each for 2G and 3G mobile technologies. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्या है बेटा, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड मींस जब 1G जो हमारे पास थे उसमें सिम नहीं होता था, लाइक जो आपके लैंडलाइन मोबाइल फोन्स होते थे. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, 2G की. तो हमारे पास डेटा सर्विसेज उसी टाइम पर आई थी मोबाइल में, और स्टार्टिंग विद टेक्स्ट मैसेजिंग. ठीक है. और 3G में हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या आया था बेटा, वीडियो कॉलिंग. 2G में हमारे पास वीडियो कॉलिंग अगर थी तो इतनी उसकी जो स्पीड है, क्वालिटी है, दैट वाज नॉट अप टू दैट लेवल. नेक्स्ट इज बेटा, व्हाट इज वेब 2.0. दिस टॉपिक इज नाउ eliminated from the curriculum. This is web 2.0. If you want, let me show you that. This is revised syllabus. Let me show you the deleted syllabus. From here you can download the curriculum also for 11th and 12th. This is for deleted version and for computer science. Now say this for class 12th. ये डिलीटेड टॉपिक्स का है बेटा, डिडक्टेड कंप्यूटर साइंस क्लास 11th एंड दिस इज फॉर क्लास 12th. तो इसमें अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें बेटा, सो दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड. वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेजेस कौन सी हैं, प्लस वेब 2.0. फाइन. एंड ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं, दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड नाउ. सो आई एम स्किपिंग दीज टू क्वेश्चंस. अदरवाइज अगर आपको डेफिनेशन Since you are eager to know, तो वेब 2.0 क्या, लाइक जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल मीडिया में हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वीडियो शेयरिंग करते हैं, इमेज शेयरिंग होती है, ये सारे आपके किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, वेब 2.0. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन हॉर्स एंड कंप्यूटर वॉर्म. अब देखो इनकी ना कुछ टर्म्स होती हैं कि अगर डेफिनेशन या डिफरेंस आ गया तो यू हैव टू राइट दैट टर्म्स ओनली. Not only, you have to include that terms also. ठीक है. कंप्यूटर वॉर्म में I told you self replicating. Fine. Trojan horse में क्या बेटा, it is a malware computer program presented as useful or harmless. Means in the beginning it will like कि ये आपके सिस्टम के लिए harmful नहीं है, आप उसको इंस्टॉल करोगे, रन करोगे, मीन्स बैकग्राउंड में कुछ स्क्रिप्ट साथ में आपकी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं, ट्रोजन हॉर्स. कंप्यूटर वॉर्म कैट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मींस खुद की फाइल की वो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता चला जाता है. और कब तक क्रिएट करता है बेटा, जब तक या तो वो डिस्क स्पेस कम फुल ना हो जाए,
ठीक है, आपकी जो मेमोरी है वो फुल ना हो जाए। विच यूजेस अ नेटवर्क टू सेंड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। अगर नेटवर्क पे मेरे पास एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं तो ये उस दूसरे कंप्यूटर पर भी उसकी मल्टीपल कॉपीज को ये ट्रांसफर कर देता है। इट मे डू सो विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन। विदाउट यूजर इंटरवेंशन ये इसको डिटेल्स कॉपीज की मल्टीपल कॉपीज फाइल की क्रिएट कर लेता है। व्हाट इज वर्म एंड हाउ इज इट रिमूव? अब बेटा वर्म क्या है, मेरा एक वायरस है, तो रिमूव दैट वी हैव टू यूज द एंटीवायरस। सो सिंपल। A worm is a self-replicating computer program which uses a network to send copies of itself to other computers on the network. And worm can be removed by installing the antivirus. कोई भी वायरस हो बेटा, to remove that we have to use the antivirus softwares. Now next question, again this client side or server side is deleted from your course, but see client side और server side scripting languages की अगर हम categorize करें तो क्लाइंट साइड पर हमारे पास है बेटा वी आर हैविंग VB स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, एंड एट सर्वर साइड वी आर हैविंग ASP एंड GSP, एक्टिव सर्वर पेजेस एंड जावा सर्वर पेजेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन PAN एंड LAN टाइप ऑफ नेटवर्क्स. नाउ सी द डिफरेंस. PAN stands for personal area network and LAN stands for local area network. This is the full form of these two. A difference beta, PAN is a computer network organized around an individual person. Means, like suppose I am transferring the data from my mobile phone to the computer system to my laptop. यहाँ पर within the very small range within meters क्या आपका होता है बेटा PAN. And LAN interconnects a high number of nodes within a building. आप कह सकते हो within a school building. तो यहाँ पर आपका कौन सा होता है बेटा LAN. Examples, इसको हम थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं बेटा. These are of PAN and these are of LAN. ठीक है, PAN के एग्जांपल्स हैं बेटा अपलोडिंग द फोटो फ्रॉम योर सेल फोन टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा, और शेयरिंग ऑफ डेटा यूजिंग ब्लूटूथ, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट. और LAN में आएंगे आपके बेटा नेटवर्क विद इन द ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, इंटरनेट कैफेज. यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है, जो नेटवर्क होता है, दैट इज LAN नेटवर्क. Now next question, which protocol helps us to transfer the files to and from a remote computer? अब देखो remote computer के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है जनरली? Telnet. And to transfer files we are having FTP. तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर अपना लिख सकते हो. Both are used, even TCP also, to transfer files to and from remote computers. Now next question is, write any one advantage of bus topology. Also illustrate how four computers can be connected with each other using star topology of network. First, we will see the advantage of bus topology. In bus topology, computers can be connected with each other using hosts along a single length of cable. इसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, सिंगल लेंथ ऑफ केबल होती है और इसी में हमारे सारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. इसमें हमारा फॉल्ट डिटेक्शन भी इजी होता है. अगर मुझे फॉल्ट को डायग्नोज करना, डिटेक्ट करना हो कि कहाँ पर फॉल्ट है वहां पर, तो दैट इज बीइंग इजी. और नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, वी हैव टू इलस्ट्रेट हाउ फोर कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग स्टार टोपोलॉजी. अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास हब और यू कैन से सर्वर होगा, फोर कंप्यूटर्स कनेक्ट करके दिखाने. अगेन इट्स सो इजी क्वेश्चन. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड एंड योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज VoIP? So VoIP, इसकी फुल फॉर्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये जनरली हमारा यूज होता है व्हेन वी आर डूइंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, मींस हम अपनी वॉइस को ट्रांसफर कर रहे हैं. VoIP is a methodology and group of technologies for the delivery of voice communication and multimedia session over internet protocol. Fine, such as the internet. हम अपनी वॉइस, वीडियो या डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, तो हमारा वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम द प्रोटोकॉल. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं बेटा कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. नेम द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच नेटवर्क. पैकेट स्विच नेटवर्क में और क्या ट्रांसफर करना है, वॉइस. तो अभी मैंने बताया वॉइस को ट्रांसफर करने के लिए विच प्रोटोकॉल वी आर हैविंग, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल.
एंड द प्रोटोकॉल यूज फॉर चैटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। चैटिंग के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है बेटा IRC एंड द फुल फॉर्म ऑफ IRC इज इंटरनेट रिले चैट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IRC, that is Internet Relay Chat. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज एन IP एड्रेस? IP एड्रेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितने बिट्स का होगा बेटा IP एड्रेस? 32 बिट का होगा, प्लस आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेपरेट किससे होगा? डेसिमल और यू कैन से पीरियड्स, डॉट से स्पेसिफिक इसको हम सेपरेट करेंगे। और हर एक जो पार्ट होगा बेटा मेरा दैट विल बी ऑफ 8 बिट्स और 0 to 255, तो टोटल कितने हो गए? 256। और ये कहां से आया बेटा? 2 raised to the power 8 इफ यू विल सॉल्व तो यू विल गेट 256। ठीक है, 256 है बेटा, तो 0 से वी आर स्टार्टिंग, तो 0 to 255 टोटल कितने हो गए? 256। तो आपकी जो डिजिट्स हैं 140, 140, 179 ये कहां से कहां तक हो सकते हैं? फ्रॉम 0 to 255। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज HTTP? Hypertext Transfer Protocol, this is the full form, and HTTP is used to transfer all files and data from one computer system to another. Even this protocol is used for communication between the web server and web client. अगर ये क्वेश्चन आता है which protocol is communication between web client and server, then also you can write HTTP, or it is used to transfer all the files from one computer to another system using World Wide Web. Next है बेटा, explain the term, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकीज। अब कुकीज क्या होती है बेटा? जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो उसकी सर्च हिस्ट्री, आप क्या पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम इन अ फाइल, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकीज। आपने कभी देखा होगा, सपोज आपके माइंड में आया व्हाई नॉट टू परचेज अ मोबाइल फोन, लेट सपोज, ठीक है, और लैपटॉप। अब आपने उसको सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर, जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, आपने उसको सर्च किया, ठीक है। अब सपोज लैपटॉप आपने सर्च किया, मोबाइल फोन आपने सर्च किया, अभी आपने उसको परचेज भी नहीं किया, सिर्फ सर्च किया है, तो आप देखोगे बाद में आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स भी शो होंगी। रीजन बीइंग दैट उसकी जो आपकी हिस्ट्री है, जो पैटर्न आप लोग सर्च कर रहे हैं, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन अ फाइल इन योर कंप्यूटर सिस्टम दैट आर नोन एज योर कुकीज। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कुकीज आर फाइल्स स्टोर्ड टेम्परेरीली ऑन ब्राउजर्स कंप्यूटर, मींस ऑन आवर ओन कंप्यूटर सिस्टम, that stores user information that is used to identify the user when he logs into the system. आपकी जो भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्टोर होंगी उसमें। How is 4G different from 3G? This you can do, I think. 4G different from 3G. 3G टेक्नोलॉजी ने क्या क्या ऐड किया बेटा? मल्टीमीडिया लाइक वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स एप्लीकेशन। 4G ने क्या प्रोवाइड किया? बेटर इमेज और वीडियो क्वालिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द HTTP एंड FTP प्रोटोकॉल? FTP is used to upload the files from a workstation, मीन्स अगर मुझे फाइल्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और HTTP हमारा जनरली यूज होता है बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओवर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नाउ सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा? जिनका जो सोर्स कोड है दैट इज अवेलेबल टू अस, ठीक है। सोर्स कोड लाइक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, उसमें हम कोडिंग लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स कोड। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं बेटा, प्लस उनका सोर्स कोड भी दैट विल इज अवेलेबल टू अस। बट जो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। लेट मी रीड दिस डेफिनेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर whose source code is available and it can be modified and it can be redistributed. Redistribute means उसको किसी और को distribute कर देना without any limitation, whereas source code is not available in the proprietary software. ठीक है, open source software में first difference is in open source software source code is available and in proprietary software source code is not available. And second difference is that open source software are free of cost, while जो आपकी proprietary softwares हैं these are not free available free of cost. One need an authorized license paid in order to use this proprietary software, while जो हमारे open source software है can be used by anybody, are usually free of cost.
So these are the main two differences between the open source software and proprietary software. So that's all for this video. I hope you like this video और आपके जितने concepts हैं वो clear हो गए होंगे. Remaining questions we will cover in our next video. And if you like this video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.